Welcome back to your English class 6th and class 7th. Basically, it's an English grammar class, and it's been long since we have studied some grammar. So let's get started. This video, I'm telling in the beginning, is for both the classes, class 6 as well as 7. That is, I've kept both the books, the 6th book as well as 7th book, because the topic that we have to study here for now is just the same. In both the books, we have to go with one topic, that is the chapter 3rd, that is noun, for class 6th, and it's the same for class 7th as well. Exercises will be done separately. So in both the classes, chapter 3 is noun. So explanation is basically same of grammar. ऐसा तो है नहीं कि क्लास 6 के बच्चे जो ग्रामर पढ़ेंगे वो 7th की नहीं पढ़ेंगे, तो दोनों क्लासेस का ग्रामर तो सेम ही होगा. So explanation will be same. फिर exercises के लिए we move on to the next and a proper way, different classified books for your classes. So let's start with the explanation part. तो noun is not a new word to you. आप सबने इस word को पहले बहुत बार सुना है, and definitely you well understand what is basically a noun. So before beginning with this, I would like to tell you first about parts of speeches. So tell me, what do you think parts of speeches are? As clear from the name, parts of किसके parts? Speech. जो बातें, जो grammatically correct sentences हम देते हैं, उनको बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो चीज़ें साथ आती हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस. दैट इज 8. सो टोटली आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, जिसमें क्या क्या आता है आपका, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस, बट जस्ट फॉर रिविजन. एक आता है आपका नाउन, देन वी हैव प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjective, conjunction, preposition, and interjection. So these are the basic 8 part of speeches that you need to know to have a proper speech delivery, to have a proper way of English. So let's begin. I'll tell you in short about all the parts of speeches. Noun too we are going to study in detail, and we'll study everything in detail, but for now we need to go in short. So noun, name of a person. Pronoun, जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम noun के जगह पर करें, जिन words का, उनको pronoun. Verb, वो words जो किसी तरीके का action दिखाते हैं, किसी तरीके का टास्क परफॉर्म होता हुआ दिखाते हैं, काम को होते हुए बताते हैं, वो हो जाता है आपका वर्ब. देन वी हैव एडवर्ब, द वर्ड्स दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ब आर एडवर्ब्स. एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन, किसी प्रोनाउन या किसी एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करें, उनके बारे में और चीज़ें बताएं, वो हो जाते हैं एडजेक्टिव. कंजंक्शन, जनरली हम जॉइनिंग वर्ड्स कंजंक्शन के जैसे रेफर करते हैं. जॉइनिंग वर्ड्स इन द सेंस, सपोज देयर आर 2 sentences, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ प्रिटी. So we can write it as she is a pretty she is a beautiful girl and she is intelligent. So we can write it as she is a beautiful and intelligent girl. तो and यहाँ पे काम कर रहा है 2 sentences को मिलाने का. Preposition, as clear from the name, position बताने वाले words को हम preposition कहते हैं. In, under, above, etc. Then last one is interjection, और interjection होता है किसी sudden feeling को express करने वाले words, चाहे वो sorrow हो, चाहे वो happiness हो, excitement हो, anger हो, whatever. ठीक है? So these are the basic 8 part of speeches in short. In this lecture, we'll be studying in detail the first part of speech, that is noun, which you are quite familiar that noun is basically, coming again to the noun. So noun basically is what? Basically noun is the naming words. हर एक वो word जो हमें help करते हैं किसी भी चीज़ को नेम करने में, या जो भी वर्ड किसी के नाम के तौर पे यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, वो सब के सब बेसिकली नाउन होते हैं. फॉर एग्जांपल, इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, आप एक फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो फ़ोन उस डिवाइस का पर्टिकुलर टर्म है जिससे आप उस डिवाइस को पहचानते हैं. सो फोन इज़ अ नाउन. आप पढ़ रहे हैं, यू मस्ट बी आई एम टीचिंग, आई एम यूजिंग अ पेन, पेन इज़ अ नाउन. आई एम यूजिंग अ कॉपी, copy is a noun. I'm using a camera, camera is a noun. I'm teaching you in a classroom, classroom is a noun.
I am teaching you, my name is Shrishti. So Shrishti is a noun. You are studying, for example, your name is Ram. So Ram is a noun. Everything, हर एक वो चीज़ जो किसी भी तरीके से कोई नाम बताए, आप अपने अगल बगल देखिए इस वक्त, अपने अगल बगल आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं उस हर एक चीज़ का एक नाम होगा. वो नाम एक नाउन है. सपोज आप कमरे में बैठे हैं, आपने लाइट जलाई हुई होगी और आप सामने आपके फ़ोन है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है या जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, एंड यू आर स्टडिंग. सो एवरीथिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ अ नाउन. द रूम, द फ्लोर वेयर यू आर सिटिंग, द पेन, द कॉपी, द कैमरा यू आर यूजिंग, द walls, the ceiling fan, the lights, everything that you can see that actually exists is a noun. तो basically किसी भी name, किसी भी person, place, animal, thing या feeling के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. जब भी हम किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी फीलिंग या किसी थिंग की बात करेंगे तो वो एक नाउन होगा विदाउट अ डाउट. तो इतना आपको समझ में आया कि बेसिकली व्हाट अ नाउन, व्हाट इज अ नाउन. सो वी डिराइव द डेफिनेशन फ्रॉम हियर दैट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल or thing is a noun. इतना तो understood है by now. So you already know about it. This is nothing very new to you. So ये हो गया noun. Moving ahead, I would like to tell you the types. ये तो हो गए types. इसके general examples भी हमने देख लिए क्या क्या चीज़ें हैं. I have tried to explain it in the best possible way. So now we'll come to the types. The types of noun. So आपने जब आप बहुत छोटे रहेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि नाउन 3 टाइप के होते हैं. देन आप थोड़े बड़े हुए तो आपने पढ़ा होगा 4 हैं, फिर आपने देखा होगा कि 5 हुए, फिर ग्रेजुअली बढ़ते गए. सो बेसिकली भाई कोई स्पेसिफिक चीज़ है या नहीं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन, वी बेसिकली हैव 5 बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन. जो भी आप और टाइप्स पढ़ते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से डेराइव्ड हैं, किसी ना किसी और फॉर्म में या किसी ना किसी नाउन के सब टाइप हैं. सो द बेसिक 5 टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला इज द प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड द लास्ट वन इज मटीरियल नाउन. So these are the basic 5 types of noun that we have to study at this particular time, because these are the basic things that include all the elements that can create a noun. So coming to the first thing, proper. आपने पढ़ा है पहले भी, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन. जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करें, स्पेसिफिक इंसान हो, स्पेसिफिक जगह हो, स्पेसिफिक एनिमल हो, स्पेसिफिक थिंग हो, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर नेम कैरी करते हैं. दे ऑल कैरी अ पर्टिकुलर नेम एंड हेंस दे आर टर्म्ड टू बी अ प्रॉपर नाउन. सो व्हाट यू कैन कॉल अ प्रॉपर नाउन? The names given to a particular person, place, animal or thing is a proper noun. So this is what basically a proper noun is. For example, again, where do you study? You study in a school which has a specific name. School क्या कोई specific नाम है? नहीं. लेकिन मैं पूछूँ विच स्कूल और तब आप बोले आई स्टडी इन द इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल. सो द इंडियन रेवोल्यूशनरी ओवर हियर इज डेफिनेटली अ स्पेसिफिक नेम. People can copy the ideas, people can copy everything, but can they copy this name? No. So this is a specific name. Coming to the other kinds of nouns, suppose you're going on a family trip somewhere and friends ask you, where are you going? You just happen to say, I'm going to many places.
So that is again not specific. But when you say I'm going to Singapore, or for example you are going to say that I'm going to Delhi, तो ये क्या हो गए, ये स्पेसिफिक नाम हो गए ना, ये सारे के सारे स्पेसिफिक नाम हो गए. तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक नाम की बात करेंगे तो उस वक्त वो नाउन एक प्रॉपर नाउन बनाएगा. वट एवर इट इज, चाहे वो कुछ भी हो. सपोज यू हैव अ पेट, व्हेन यू सपोज यू हैव अ पेट डॉग, और आपसे कोई पूछे डू यू हैव पेट, यू विल से यस आई हैव अ डॉग, बट यू से कि नो आई हैव अ पेट डॉग नेम्ड ब्रूनो. सो अगेन this will be a proper noun. I teach, suppose you are being taught many subjects, तो हर एक specific subject की जब हम बात करेंगे, so when you designate it with your teacher's name, तो वो एक proper noun बन जाएगा. तो every time जब हम specific हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी type के explanation या नाम या किसी के person, place, animal या किसी भी चीज़ के नाम को specific कर देते हैं, तो वो एक proper noun बनाता है. So the names of a particular place, person, animal, thing or place is called as a proper noun. ठीक है. तो for example Ram lives in Gorakhpur, तो राम और गोरखपुर दोनों ही proper noun हो गया. Coming to the next type, I hope you understood this. Coming to the next type of noun, that is common noun. Common noun is again clear from the name. जब भी हम स्पेसिफिक ना हो, किसी कैटेगरी, एक जैसे बहुत सारी चीज़ों की बात करें, ग्रुप इन द सेंस कि एक कैटेगरी की बात करें, किसी एक इंसान को स्पेसिफाई ना करें, सेम तरह के बहुत सारे लोगों की बात इकट्ठे कर ले, जैसे गर्ल्स, बॉयज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन गर्ल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव पीपल. तो एक जैसे लोगों की बात जब एक साथ की जाए, तो उस वक्त जो वर्ड्स, जो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कम, वे यहाँ पे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं. मैंने आपसे बोला था स्कूल, तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक था? स्कूल तो बहुत सारे हैं दुनिया में, कुछ भी स्पेसिफिक हुआ नहीं. तो इस केस में दिस वॉज अ कॉमन नाउन. कमिंग टू अदर एग्जाम्पल, आई सेड पेट. सो क्या पेट स्पेसिफिक है? बहुत सारे तरीके के पेट्स हो सकते हैं. पीपल हैव रैट, पीपल हैव बर्ड्स, पीपल हैव डॉग, पीपल हैव कैट्स. सो पेट कॉमन नाउन हो गया. टॉकिंग अबाउट प्लेसेस, मैंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, मैंने बस बोला कि दे आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस. तो यहाँ पे अगेन प्लेसेस इज अ नाउन बट इट इज नॉट स्पेसिफिक. बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, बहुत सारे, तो मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ. तो प्लेसेस यहाँ पे हो गया कॉमन नाउन. तो जब भी हम एक जैसे बहुत सारी चीज़ों की बात एक साथ करेंगे, दैट विल टर्न टू गिव अस अ कॉमन नाउन. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सपोज गर्ल, बॉयज, teacher, animal, anything that you can talk about, it's in a common form, in a collective form. That will give you an example of the common noun. तो इसकी definition क्या लिखेंगे आप? The names of the same kind of person, place, animal or thing will be the name of same type of person, place, animal or thing is a common noun. So this is the second type of noun done. Coming to the third type of noun, that is, third type is basically abstract, collective is the fourth type. So coming to the third type of noun, that is abstract noun. Abstract word का English में क्या मतलब है? General, when you use it as a vocabulary. Abstract का मतलब होता है something that can be felt, जो आप actual में literally छू ना सके जिस चीज़ को, that is something we call it as abstract. तो similarly is the abstract noun. आपको मैंने explanation में बताया था अभी कि जब भी हम किसी तरीके के feeling की बात मैंने की थी आपसे, तो वो फीलिंग्स काउंट होती हैं सारी की सारी एक साथ इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में. तो जब भी हम किसी ऐसे चीज़ की बात करें जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ना कर रहा, मतलब एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ना कर रहा हो, जिसको आप टच ना कर सकें, आप फील ना कर सकें, आप फील कर सकें पर आप छू ना सकें, आप देख ना सकें, यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली रियलाइज इट, यू कैन ओनली जस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो जितनी भी फीलिंग्स, आप लव की फीलिंग हो, ऑनेस्टी हो, कैसे भी कोई इमोशंस हो,
क्लेवरनेस हो, हेट्रेड हो किसी के लिए, ये सारे क्या हैं? आप लव छू सकते हो किसी की? नहीं, लेकिन फील कर सकते हो. सिमिलरली विथ ऑनेस्टी, आप किसी की ईमानदारी को छू सकते हो क्या कि अरे बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर ईमानदारी, ऐसा कहते हैं हम कभी? नहीं. वी कैन जस्ट फील कि यार ये बच्चा ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट. क्लेवरनेस, hate, anything, any kind of feeling you count about, all these are abstract things. और ऐसे चीज़ों के नाम को हम abstract noun कहते हैं. So how will you define it? The noun which tells about the feeling of a person, place, animal or thing is called as a abstract noun. The noun, या ऐसे लिखो, the name of the feeling of a person, place, animal or thing is abstract noun. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? I already told you love, honesty, cleverness, hate, clarity, equality, freedom. अभी हमने इंडिपेंडेंस डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया है. It was all about what? It was about having freedom, privacy, marriage. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? Abstract noun है. So what will be the basic example of these? You can say treatment. ट्रीटमेंट करते हैं हम, यू कैन जस्ट फील द ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट, फ्रीडम, प्राइवेसी, क्लैरिटी, एंड द एग्जाम्पल्स आई गेव यू अबव, देयर आर मेनी मोर एटसेट्रा. सो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ मूविंग अहेड टू द फोर्थ काइंड ऑफ नाउन, दैट वाज collective noun. So what is a collective noun? जब कोई भी वर्ड किसी कलेक्शन को डिपिक्ट करे, किसी तरीके के ग्रुपिज्म को डिपिक्ट करे, इसको अब ये मत कहना कि आपने बोला था मैम कॉमन नाउन में भी तो ग्रुप की बात होती. नहीं, वहाँ पे हम एक ग्रुप या एक कलेक्शन की बात नहीं कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन अ कैटेगरी. तो जब हम किसी कलेक्शन की बात करें, ग्रुप की बात करें, किसी वर्ड को सिग्निफाई करें, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स, स्कूल ऑफ वेल. स्कूल यहाँ पे ये पढ़ने वाला स्कूल नहीं है, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. लिटर ऑफ पपीज. सो ऑल दीज थिंग्स ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है किसी भी तरीके की. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ थिंग्स. यहाँ पे बंच ऑफ कीज, तो कीज का एक बंच था. बुके का एक फ्लावर्स ऑफ बुके का एक फ्लावर का एक बुके था. तो बेसिकली इट वॉज अगेन अबाउट हैविंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जिनको हम एक कॉमन वर्ड से एक कलेक्शन में रेफर कर रहे थे, सेइंग इट एज फ्लावर. सो then we talk about school, then we talk about litter. We saw army, आपने सुना होगा, it's a very common word. We talk about army of soldiers. तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा नहीं कि soldier again is a common noun, लेकिन the word army that is being used here is referring to the collection of this entire group of people. तो यहाँ पे जो army word है, that will be called as the collective noun. तो how can you define the collective noun? A noun which tells us the name of collection of people, name, place, animal or thing. A noun which tells us the name of collection of person, place, animal or thing is a collective noun. And when we talk about examples, there are many examples जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं. We can say it as flight of birds, we can say it as crew of sailors, we can say it as pride of lions, and many more. All the above examples that I've already given you. So this is the collective noun. And now we come to the fifth and the last type of important noun, that is the material noun. So what is a material noun now? After all the types of noun that we have studied, the left one is the type जब हम ingredients समझते हैं. आपने अभी साइंस में क्लास
में पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में, आई ओनली टॉट यू अबाउट वो इंग्रेडिएंट्स। किसी भी फाइनल चीज़ को क्रिएट करने में जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उन्हें हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। जिन सब्सटेंसेस की ज़रूरत हो वी कॉल देम एज इंग्रेडिएंट। सो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? ऑल द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक वन कंप्लीट थिंग। किसी भी तरीके का इंग्रेडिएंट एक मटेरियल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक अच्छा फैब्रिक बनाने के लिए कॉटन का, वी नीड कॉटन, तो यहाँ पे कॉटन एक इंग्रेडिएंट हो गया। गोल्ड एक इंग्रेडिएंट है ज्वेलरी बनाने के लिए। राइस एक इंग्रेडिएंट है किसी तरीके का डिश बनाने के लिए। सो एवरी काइंड ऑफ मटेरियल दैट यू कैन इमेजिन ऑफ, और देयर इज सम काइंड ऑफ substance जो किसी चीज को बना रहा है, that you can imagine of, will give you a material noun at the end. So what is a material noun? हर एक ingredient के form में use होने वाला सामान। wood, we use it for making furniture. Then we have plastic, we again use it for multiple purpose. We use it for making buckets, mugs, furniture again, depending on the type of thing that you are using. So हर एक चीज़ जो किसी फाइनल चीज़ को बनाने में काम आए, इंग्रेडिएंट के तौर पे उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। सो हाउ कैन आई डिफाइन इट? मटेरियल नाउन इज अ वर्ड फॉर अ मटेरियल comma a substance or an ingredient that other things are made of, जिसको इस्तेमाल करके दूसरी चीजें बनती हों, are made of, is material noun, simply। ठीक है, examples I told you। कोई इनके अलावा भी बहुत सारे examples जिनको हम यूज कर सकते हैं। दैट फैब्रिक था कॉटन, वी यूज्ड, और भी फैब्रिक्स बनते हैं, जूट, wheat, गेहूं। It is used as an ingredient for making the flour, so it is again an ingredient। ज्वेलरी बनाने के लिए we use silver, that is again an ingredient। तो all these things are material noun। So I hope आपको समझ में आया हो अभी तक सारे types of noun। material, collection नहीं, collective, then we have abstract, then we have common, and then we have proper। So I hope you have understood here after we have studied about material, collective, abstract, common and proper noun, and by now we are done with the basic 5 types of noun। When I started the topic, the types of noun, I mentioned कि there are many other types of noun that you must have heard about, जैसे कि countable सुना होगा आपने, countable and uncountable सुना होगा आपने। You must have heard about concrete noun। So ऐसे कुछ nouns हैं that have been created or derived out of some other kinds of noun, and these are less common types of noun। So we'll have a look on these category also। So not all, but one major category that we know, that is the other common noun types, countable and uncountable noun। As clear from the name countable, आपने अपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा काउंटिंग नंबर्स, वो नंबर्स जिन्हें हम काउंट में ऐड करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर द काउंटिंग नंबर्स। सिंपली इससे समझिए आप, हर एक वो नाउन जिसको काउंट किया जा सके काउंटिंग नंबर्स के थ्रू, 1 2 3 4 100 1000 500 एटसेट्रा, विल बी टर्म्ड एज अ काउंटेबल नाउन इन अ कंटिन्यूएशन। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पेन, हम गिन सकते हैं कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कीप दीज ऑल पेन्स राइट नाउ हियर, वी कैन इजीली काउंट ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6। आई नो देयर आर 6 पेन्स एंड ऑल। When we talk about paper, I can count how many pages this copy has. So it will take time, but I can count. I talk about flower, I can count the number of flowers that are present in front of me। Friend, you must be having a particular number of friends। Book, आपको पता होगा आपके पास कितने बुक हैं, not wood obviously। एनिमल आप काउंट कर सकते हैं, यू कैन काउंट अ कार। तो हर एक वो चीज़ जिन्हें आपका एक स्पेसिफिक, जिनका आपको एक स्पेसिफिक काउंट मिल सके, जिन्हें आप गिन सकें, वो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। एंड अगेन क्लियर फ्रॉम द नेम, जिन्हें आप गिन नहीं सकते वो सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। जैसे कि लव, अब मैं आपसे बोलूँ कि आई लव माई फादर, तो क्या आप मुझसे पूछेंगे तुम एक प्यार करती हो या 2 प्यार करती हो? नहीं, आई जस्ट लव माई फादर। I have water, I have 1 water, 2 water, is that possible? I have coffee, अगर मैं ये बोलूँ give me 2 cup of coffee, तो it's okay।
बट आई हैव कॉफ़ी, इसको कोई गिन सकता है? नहीं। कप को तो हम गिन सकते थे, पर कॉफ़ी को नहीं गिन सकते। कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं, आई इनहेल 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इज दैट पॉसिबल? सॉरी, आई एक्सहेल 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इज दैट पॉसिबल? आई इनहेल 2 ऑक्सीजन, इज दैट पर्टिकुलरली पॉसिबल? नहीं। सॉल्ट, नमक को गिन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम नहीं गिन सकते। दिस इज अ वेरी लिमिटेड सेट ऑफ एग्जाम्पल, देयर आर मेनी मेनी एग्जाम्पल। हर एक नाउन कैन बी कैटेगराइज प्रॉबेबली इनटू अ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल टाइप। तो लव, वाटर, कॉफी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वुड, हैप्पीनेस, डस्ट एटसेट्रा, ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंपली द अदर कॉमन काइंड्स ऑफ नाउन में यू हैव टू स्टडी 2 मोर, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। हर एक वो नाउन जिन्हें आप गिन सकें वो एक काउंटेबल नाउन होगा, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं वो हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। बट द बेसिक 5 टाइप्स स्टिल रिमेन द सेम: मटीरियल, कलेक्टिव, abstract, common and proper noun. That's it. So I hope you have understood this chapter properly by now, and if there is any doubt, so please let me know, or better write it in the comment section below. I shall definitely get back to you with a proper reply to this. And in the next lectures we shall begin with the exercises from a book. Mind you, in grammar we are not going to make any copies. तो जो भी इस लेक्चर से आपको इंपॉर्टेंट बातें लगी हो, जैसे कि ये टॉपिक हो गया या कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो गए, उन सारे चीज़ों को आप अपने बुक में अलग से एक एक्स्ट्रा नोट बना, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आपके बुक में नहीं है तो जस्ट राइट इट एज अ नोट इन योर बुक. वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ ग्रामर कॉपी, so all you have to do is it in your book only. So in the further classes we'll straight away begin with the exercises. Till then, take care, stay at home, study well and do good with your studies. If there is any doubt, please let me know. Bye.